Hello everyone, I am Dharna Sajwan and welcome to my YouTube channel Impact English. इससे पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाए एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस. नाउ सी हियर, पास्ट परफेक्ट टेंस change into passive voice. Now see here, I am writing an example of active voice. The players had won the match. See, now how to change? Subject had been, verb's third form, and then object. And one more thing is that in these sentences, only in this past perfect tense, you don't have to remember that whether it's a singular thing is given or plural thing is given. You have to use only had, whether it's given a singular or plural thing. एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें ये नहीं ध्यान रखना कि सिंगुलर थिंग दी गई है या प्लूरल थिंग दी गई है. सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हमें हैड का ही यूज करना है, या फिर पैसिव वॉइस में हैड बीन का ही यूज करना है. नाउ सी हियर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा. तो द मैच हैड बीन, थर्ड फॉर्म, won by the players. See another example. The children had eaten all the cakes. Now how to change? ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा. So according to this structure, all the cakes, और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है had been. all the cakes had been के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म eaten by, और ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. वन मोर एग्जाम्पल, he had taken tea. Now, tea had been taken by, and he will be changed into him. Now we will learn about how to change negative sentences active voice into passive voice. Now see here. Here an example of active voice. He had not eaten bread. Now see how to change. Subject had not been, verb's third form, and then object. अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. ऑब्जेक्ट, ये जो ब्रेड है इट्स एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जब पैसिव वॉइस में ये आएगा ये सब्जेक्ट बन जाएगा. तो हमें ब्रेड, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है हैड नॉट बीन. सो ब्रेड हैड नॉट बीन, देन थर्ड फॉर्म eaten by, and he will be changed into him. See another example. They had not won hockey match. How to change? हॉकी मैच, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें हैड नॉट बीन का यूज करना है. हॉकी मैच हैड नॉट बीन, थर्ड फॉर्म, वन बाय, एंड दे विल बी चेंज इनटू देम. Now we will learn about interrogative sentences, that how to change into passive voice. See here. Here I am writing an example. Had I opened the door,
Now see here how to change helping verb, subject, been, verb's third form, and then object. Now how to change helping verb had, after that subject, had the door, then after subject हमें been का यूज करना है. Been third form, opened by and I, it will be changed into me and question mark. Another example we take, had he played cricket. Now how to change? We'll start with helping verb, had cricket, then after subject, ये subject है, subject के बाद हमें क्या यूज करना है? Been, been, then third form, played by, and he will be changed into him. See, another example we also take. Had he eaten bread? So, had bread been eaten by him? Now we will know about present perfect and past perfect. That what is the difference? Now see here, present perfect and past perfect. आई जस्ट वॉन्ट टू से के प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में मीन्स कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज किया जाता है. नाउ सी हियर, प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में क्या क्या यूज किया जाता है? सब्जेक्ट, हैज, हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सी, शी हैज रिटन अ स्टोरी. क्लियर? सब्जेक्ट है, हैज, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एक ऑब्जेक्ट है. अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमें हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, एंड देन ऑब्जेक्ट. जैसे कि ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी, then has been, verb की थर्ड फॉर्म, written by, and she will be changed into her. ऐसे ही हम पास्ट परफेक्ट में देखेंगे. पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में क्या दिया होता है? सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. He had eaten fruits. ये तो एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का. मीन्स एक्टिव वॉइस में क्या क्या दिया होता है. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड बीन का यूज होता है, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? ही हैड ईटन फ्रूट्स, तो फ्रूट्स सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमें हैड बीन का यूज करना है. फ्रूट्स हैड बीन के बाद हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, हैड बीन ईटन बाय, एंड ही विल बी चेंज इनटू हिम. सी अनदर एग्जांपल. I had taken tea. सब्जेक्ट हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है. अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड बीन, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. तो अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे. टी सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज करना है? हैड बीन, टी हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन,
एंड आई किस में चेंज हो जाएगा, आई मी में चेंज हो जाएगा. See here another example. I have taken tea. ये एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट का है. तो सब्जेक्ट हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. सो टी has been third form taken by and I will be changed into me. And I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe.